Number 1.1. Which of the following determine which of the following polynomial has x plus 1 as a factor? x plus 1 as a factor. सवाल है कि ये पॉलिनोमियल जो है x plus 1 से डिवाइड होता है कि नहीं. तो इसके लिए हमें डायरेक्टली डिवाइड नहीं करना है, हमें इसका x का वैल्यू निकालना है. x इक्वल्स टू -1 प्लस 1 यहाँ पे जाके हो गया -1 और इस -1 को हमें x के वैल्यू में पुट करके देखना है कि इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है कि नहीं. अगर 0 आ रहा है तो हाँ x plus 1 से ये नंबर डिवाइड जाना है. अगर 0 नहीं आ रहा है तो आंसर इज नो. सो p of x equals to x cube plus x square plus x plus 1. So p of -1 equals to -1 cube -1 square -1 plus 1. So -1 cube is -1, -1 square is plus 1, -1 plus 1. -1 plus 1 reduce, -1 plus 1 reduce. So answer is 0. So statement is yes. Next question is x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. Is x plus 1 is the factor of this polynomial? So x equals to -1. So p of x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. So p of -1 to the power 4 -1 cube -1 square -1 and 1. -1 to the power 4, that means -1 into -1 into -1 into -1. आंसर इज 1. जब किसी नंबर के ऊपर अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसके ऊपर अगर इवन नंबर का पावर लगा हुआ होता है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आता है. So -1 to the power 4 is +1 and -1 to the power cube is -1. -1 square +1 -1 +1. So +1 -1 reduce, +1 -1 reduce and answer is 1. Since remainder is not 0, so our statement is no. That means x to the power 4 plus x cube plus x square plus x plus 1 is not divisible by x plus 1. मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ये x plus 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, उसका रिमाइंडर 1 रह जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. x to the power 4 plus 3x square plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. Is this polynomial is divisible by x plus 1? So x equals to -1. So p of x equals to x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1. So p of -1 to the power 4 plus 3 minus 1 cube plus 3 minus 1 square minus 1 and plus 1. 1 to the power 4 means -1 to the power 4 means 1 plus 3 minus 1 cube means -1 plus 3 minus 1 square means 1 plus -1 plus 1. Next line 1 3 1 are 3 minus 3 3 1 are 3 plus 3 minus 1 plus 1 plus 1 and minus 1 reduce minus 3 and plus 3 reduce, answer is 1. So since the remainder is not 0, so our statement is no. That means x to the power 4 plus 3x cube plus 3x square plus x plus 1, this polynomial is not divisible by x plus 1. That means x plus 1 is not a factor of this polynomial. X to the power 4 plus 3x square plus 3x cube plus x square plus x plus 1. Next question. Next, question number 2. X cube minus x square minus bracket 2 plus root 2 bracket close 8 plus root 2. This number is x plus 1 is a factor of this number. So x equals to -1. Now p of x equals to x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2. Next line p of -1. So -1 cube minus 1 square 2 plus root 2 minus 1 plus root 2. Next line -1 cube means -1 and -1 square means 1 minus -1 with 2.
minus 2 minus 1 multiplied with root 2 minus root 2 bracket close plus root 2. Next line minus 1 minus 1 minus minus plus 2 minus minus plus root 2 and plus root 2. ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2 और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2. ये जो माइनस है ये दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई हो गया. सो माइनस 1 एंड माइनस 1 minus 2 plus 2 and root 2 plus root 2 like a plus a plus a 2a. So root 2 plus root 2 is 2 root 2. Next line minus 2 plus 2 reduce, so remainder is 2 root 2. Since remainder is not 0, so x plus 1 is not a factor of these polynomials. So our statement is no. Question number 2.1. P of x equals to 2x cube plus x square minus 2x minus 1 and g of x equals to x plus 1. Check whether g of x is a factor of p of x. That means x plus 1, क्या ये x plus 1 एक फैक्टर है इस नंबर का 2x cube plus x square minus 2x plus 1. So let's check. पहले हमें x का वैल्यू निकालना है. x plus 1 equals to 0. So x equals to minus 1 और इस minus 1 को इस इक्वेशन में पुट कर देना है. So p of minus 1 2 into minus 1 cube plus minus 1 square minus 2 into minus 1 and minus 1. Next line 2 into minus 1 cube means minus plus minus 1 square means 1 minus 2 into minus 1 and minus 1. Next line 2 ones are 2 minus 1 2 ones are 2 minus minus plus and minus 1. Next line minus 2 and plus 2 reduce, minus 1 and plus 1 reduce. So answer is 0. Since the remainder is 0, so g of x is a factor of this polynomial p of x. Next question, p of x x cube plus px square plus px plus 1 and g of x equals to x plus 2. So let's find the value of x. x equals to minus 2 plus 2 यहाँ पे जाके हो गया minus 2. Now p of minus 2, उस minus 2 को हमें यहाँ पे बिठाना है x की जगह पे. So minus 2 cube 3 into minus 2 square plus 3 into minus 2 plus 1. Minus 2 cube means minus 8 plus 3 minus 2 square means plus 4 plus 3 into minus 2 plus 1 minus 8 3 4s are plus 12 3 2s are minus 6 plus 1. So 12 and 1 13 and 8 and 6 minus 14. 12 और 1 दोनों प्लस साइन था, 12 प्लस 1 13 हो गया और ये भी माइनस था और ये भी माइनस था, दोनों ऐड हो गए 14 हो गया माइनस 8 हो, माइनस 8 का साइन 14 माइनस 14 हो गया. So minus 14 and plus 13. Answer is 1 minus 1. So since the remainder is not 0, so g of x is not a factor of p of x. Solved. P of x equals to x cube minus 4x square plus x plus 3 and g of x equals to x minus 3. So at first find the value of x. So x equals to minus 3 हो गया plus 3. Next line. So p of t, ये जो p है इस वैल्यू को हमें यहाँ पे x की जगह पे बिठाना है. 3 cube minus 4 3 square plus 3 plus 6. Next line 3 cube means 27 and 4 into 9 plus 3 plus 6. So 27 4 9s are minus 36 plus 3 plus 6. Next line 27 plus 3 and plus 6 both are same sign. 27 plus 3 30 30 plus 6 36 minus 36. So 36 minus 36 answer is 0. Since the remainder is 0, so g of x is a factor of p of x. Solved. Question number 3.1. P of x equals to x square plus x plus k. It is given that x minus 1 is a factor of this polynomial. So we should find the value of x at first. So x equals to 1 minus 1 यहाँ पे जाके हो गया plus 1 और इस 1 को हमें इस polynomial में लिखना है. P of 1 equals to
1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे 0 क्यों लिखेंगे? सवाल दिया हुआ है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है दिस पॉलिनोमियल का। अगर इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है तो अगर हम x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए हमें 0 लिखना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k तो हमें यहाँ पे 0 लिख के ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट लाइन 1 प्लस 1 1 स्क्वायर मींस 1 एंड 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन 1 प्लस 1 इक्वल टू k इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट लाइन k 2 यहाँ पे जाके हो गया -2। सो k इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन p of x equals to 2x square plus kx plus 2 and x minus 1 is the factor of this polynomial. So at first we should find the value of x. Now p of 1 equals to 2 into 1 square plus k into 1 plus root 2 equals to 0 because x minus 1 is the factor of this polynomial. So the remainder is 0. Next line 2 1 square means 1 plus k1 is k plus root 2 equals to 0. Next line 2 1s are 2 plus k plus root 2 equals to 0. Next line k equals to 2 इस तरफ जाके हो जाएगा -2 और रूट 2 ये भी हो जाएगा -2। हम यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। एक और लाइन भी हम कर सकते हैं ऐसे। नाउ द आंसर इज सॉल्व्ड। Next question, p of x equals to kx square minus root 2x plus 1 and given that x minus 1 is the factor of this polynomial. So let's find the value of x. So x equals to 1. So p of 1 equals to k of 1 square root 2 into 1 plus 1 is equals to 0 because again x minus 1 is the factor of this polynomial. So k into 1 root 2 into 1 root 2 plus 1 equals to 0. Next line k1 is a k and minus root 2 plus 1 equals to 0. Next line k equals to root 2 यहाँ पे जाके हो जाएगा plus root 2 और ये हो गया -1. So answer is root 2 minus 1. Next question. Question number 4, px minus kx square minus cx plus k. Given that x minus 1 is the factor of this polynomial. So let's find the value of x. X equals to 1. Now p of 1 equals to k 1 square minus c 1 plus k equals to 0. 0 because x minus 1 is the factor of this polynomial. So the remainder is 0. Next line. K into 1 square means 1, c1 is c plus k equals to 0. Next line, k1 is k into 1 k minus c plus k equals to 0. K and k plus k 2k and minus c goes to this. Now put the value x equals to 1. So p1 equals to k into 1 square minus c into 1 plus k equals to 0. 0 because x minus 1 is a factor of this polynomial kx square minus cx plus k. So next line 1 square means 1, c into 1, c1 is c plus k equals to 0. Next line k1 is k minus c plus k equals to 0. K plus k 2k minus 3 equals to 0. Next line 2k equals to minus 3 उस तरफ जाके हो जाएगा plus 3. Next line k equals to 3 by 2. So the answer is 3 by 2. Question number 4.1. Factorize 12x square minus 7x plus 1. ये फैक्टराइजेशन क्लास 8 में भी था, वैसा ही एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन है। तो पहले हमें 12 पर 1 को मल्टीप्लाई करना है। 12 into 1 12 into 1 कितना आता है? 12 आता है। तो हमें 7 को ऐसे लिखना है जैसे
12 आ जाए मल्टीप्लाई करके, लेकिन अगर प्लस और माइनस करके 7 लाना है, जैसे 12x² माइनस, यहाँ पे अगर प्लस है तो हमें यहाँ पे भी प्लस ही लिखना होगा। तो दोनों नंबर को ऐसे, दो नंबर ऐसे लिखने हैं जिन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और प्लस करके 7 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 3। तो 12x² प्लस माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो ये प्लस हो गया माइनस। तो 12x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 1। तो ये जो पहला दो नंबर है, फर्स्ट टू टर्म, यहाँ पे क्या कॉमन आता है? 4x कॉमन आ रहा है। 4 3 12, तो यहाँ पे हो गया 3x। 12x² से 4x निकल गया तो 3x हो गया, और यहाँ से 2x का x निकल गया तो 3x, और यहाँ पे पूरा 4x निकल गया, तो इसलिए -1। नेक्स्ट लाइन, इन दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं। सो 1 अगर हम कॉमन ले लें तो 3x, और ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -1। सो 4x into 3x minus 1 minus 1 into 3x minus 1, और ये 3x minus 1 3x minus 1 कॉमन हो गया, तो 3x minus 1, और अगर हम 3x minus 1 को कॉमन ले लें यहाँ से, तो जो नंबर बचता है वो है 4x और -1, सो 4x minus 1। तो पहले हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 और 3, 2 into 3, 2 3 6, हमें 6 लाना है। 7 को ऐसे दो नंबरों में लिखना है जिन दोनों नंबरों को प्लस करके 7 आ रहा है, और वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 भी आना चाहिए। सो 2x² प्लस, तो 7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1, 6 + 1 करने से कितना आता है? 7 आता है, और 6 into 1 करने से 6 आता है। सो 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अगेन इन दोनों नंबरों से क्या कॉमन आ रहा है? 2x² प्लस 6x, यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 2 चला गया और एक x चला गया, तो हो गया x, और 2 3 6, तो 3 बैठ गया और x चला गया। नेक्स्ट लाइन, इन दोनों नंबरों से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों नंबरों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बस 1 कॉमन आ रहा है, सो x प्लस 3। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे x प्लस c दोनों कॉमन है, तो अगर x प्लस c हम निकाल लें यहाँ से, x प्लस c और ये x प्लस c अगर हम निकाल लें तो 2x प्लस 1, तो यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 1। 6x² प्लस 5x माइनस 6, तो पहले हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 into 6 36। तो हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिन दोनों को माइनस करके 5 आ रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करके 36 आ रहा है। हमें माइनस करके पता चला, जैसे यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा, और यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा। तो 6 6 36, और हमें 5 लाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 9 - 4। अगर हम 9 - 4 करें तो हमारा 5, 9 - 4 5, and 9 4 36। So next line, 6x² plus 9x minus 4x minus 6। So इन दोनों में से कॉमन क्या है? 6x² plus 9x, यहाँ से कॉमन है 3x, 3 2 6x, 3 3 9, x यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट, इन दोनों नंबरों में क्या कॉमन है? इन दोनों नंबर में कॉमन है -2, तो यहाँ पे हो गया 2x plus 3, so 2x plus 3 and 3x minus 2, 2x plus 3 2x plus 3 यहाँ से कॉमन आ गया, और 3x और ये -2 यहाँ पे बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 4, 3x² minus x minus 4, तो यहाँ पे 3 और 4, 3 4 3 into 4 हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 4 12, तो 3 into 4 12 आ रहा है। 3x² minus x minus 4, तो हमें माइनस में लाना है और 12 बनाना है। यहाँ पे बस कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 यहाँ पे 1 है, हमें 1 लाना है माइनस करके, और वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 - 3। अगर हम 4 और 3 को माइनस करें, हमें आ रहा है 1x, एंड 4 3 12। सो नेक्स्ट लाइन, 3x² minus 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x minus 4। फर्स्ट लाइन, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, 3x minus 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है +1, तो 3x minus 4, 3x minus 4 3x minus 4 दोनों ही नंबर कॉमन आ रहा है, तो 3x minus 4, और क्या बचा? x plus 1,
So answer is x plus 1, 3x minus 4 and x plus 1. Question number 5.1. Factorize x cube minus 2x square minus x plus 2. तो इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम x स्क्वायर को ले सकते हैं। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x2 है, तो हम x स्क्वायर को अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे आ रहा है x और यहाँ पे -2। यहाँ पे 3x था, 2 हमने कॉमन ले लिया तो x रह गया, और यहाँ पे x स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो बस 2 रह गया। इन दोनों में से हम -1 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ गया x माइनस प्लस माइनस, तो x -2 और x -2 हो गया कॉमन, एंड एक्स स्क्वायर -1, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे बैठ गया और -1 यहाँ पे। तो यहाँ तक आंसर नहीं है, थोड़ा और भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। x -2 एक्स स्क्वायर -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 क्यूब मतलब 1 होता है, 1 टू द पावर 1000 भी 1 ही होता है, तो हम 1 के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन x -2, और अगर इसका हम फॉर्मूला करें फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, मतलब ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b इंटू a माइनस b। सो आंसर इज x माइनस 2 x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं पहले। x क्यूब 3x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं प्लस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और 9x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x माइनस 5x एंड माइनस 5। तो हमने x क्यूब को चेंज नहीं किया, x क्यूब जैसा था वैसा ही है, माइनस 5 भी वैसा ही है, बस ये जो 3x स्क्वायर है इसको मैंने लिखा प्लस x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये जो 9x है इसको हमने लिखा माइनस 4x माइनस 5x। इन दोनों को कैलकुलेट करने से माइनस 3x स्क्वायर आता है, इन दोनों को कैलकुलेट करने से माइनस 9x आता है। तो अब क्या हुआ, इन ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अगर एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो आ रहा है एक्स प्लस 1। नेक्स्ट इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है माइनस 4x, तो आंसर हो रहा है एक्स प्लस 1, इस माइनस की वजह से ये हो गया प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, आंसर इज x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट लाइन यहाँ से x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, सो x प्लस 1 अगर मैंने यहाँ पे ले लेता हूं तो द रिमाइंडर पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, सो द रिमाइंडर पार्ट इज x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो इसको हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, तो आंसर होगा x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x माइनस 5। So 5 equals to 5 into 1, so 5 minus 1 अगर हम लिख दे तो 5 minus 1 होता है 4 और 5 1 5, तो ये फिर से फैक्टराइज हो गया। तो x plus 1 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और बाकी जैसा था वैसा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5। नेक्स्ट लाइन यहाँ से x प्लस 1, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है x माइनस 5, और इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 5, बाकी का मैं यहाँ पे कर देता हूं x प्लस 1, और ये x माइनस 5 कॉमन, द रिमाइंडर पार्ट इज x प्लस 1। हम आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, एक और लाइन भी कर सकते हैं, x प्लस 1 दोनों बार लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड x माइनस 5, दैट इज द आंसर। नंबर 5.3, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, इसको हम अरेंज कर सकते हैं x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, 13x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और ये 32x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 32x को लिख सकते हैं 12x प्लस 20x प्लस 20। तो ये जो x क्यूब था वैसे ही रहेगा, 20 रिमेंस 20, 13x स्क्वायर को हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और 32x को हमने लिखा 12x प्लस 20x। सो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर, आंसर इज x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12x, आंसर इज x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 20, आंसर इज x प्लस 1। सो अब x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1,
तो अगर हम x प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 कॉमन चला गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। नेक्स्ट लाइन x प्लस 1, इसको फिर से फैक्टराइज करना है, यहाँ पे है 20 और यहाँ पे है 12, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब 20 लाना है 12 से, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 करने से 12 आता है और 10 2 का आता है 20। सो नेक्स्ट लाइन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। नेक्स्ट लाइन x प्लस 1, इन दोनों नंबर में से कॉमन है x, तो आंसर आ रहा है x प्लस 10, और इन दोनों में से कॉमन है 2, तो आंसर आ रहा है x प्लस 10। नेक्स्ट लाइन इज x प्लस 1 x प्लस 10, यहाँ से x प्लस 10 कॉमन आ गया, यहाँ पे बैठ गया, और बाकी जो नंबर बचा x प्लस 2, x प्लस 2, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है y स्क्वायर, आंसर इज 2y प्लस 1, और इन दोनों नंबरों में से कॉमन आ रहा है माइनस 1, आंसर इज 2y प्लस 1, माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट लाइन 2y प्लस 1 कॉमन, सो 2y प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो रहता है y स्क्वायर माइनस 1, y स्क्वायर माइनस 1, ये जो टर्म है ये फिर से फैक्टराइज होगा, ये टर्म ऐसे ही रह जाएगा 2y प्लस 1, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर मींस 1, तो 1 स्क्वायर को 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2y प्लस 1, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला है वो है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस 1 एंड y माइनस 1, नहीं आंसर है।